یہ کہانی ہے ایک ایسے نیک دل بادشاہ کی جسے ایک انجان لڑکی ملتی ہے اور اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آخر اس پراسرار لڑکی کا راز کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں۔ Welcome to Zahra Magical Fairy Tales. Please dear viewers, چینل ضرور سبسکرائب کر کے جائیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی سلطنت کی جہاں دور پہاڑوں، آبشاروں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان ایک نہایت پرسکون محل آباد تھا۔ اس سلطنت کا نام تھا نورستان۔ اس سلطنت پر ایک نہایت خوبصورت، بہادر اور نیک دل بادشاہ کا راج تھا جس کا نام تھا بادشاہ عمران۔ لوگ اس سے بہت خوش تھے اور اسے اپنا حقیقی محسن مانتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا، ان سے ہمیشہ بہت اچھے اخلاق سے بات کرتا اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا۔ عمران شاہ کی بہادری کے قصے دور دور تک مشہور تھے، مگر ایک بات سب کو حیران کرتی تھی، وہ اب تک غیر شادی شدہ تھا۔ بڑی بڑی سلطنتوں کی شہزادیاں اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ بادشاہ حضور، پاس کی سلطنت سے کچھ شہزادیاں آپ سے ملنے آئی ہیں۔ مگر بادشاہ ہمیشہ یہی کہتا، میرے دل کو اب تک کوئی نہیں بھایا، جب کوئی اچھا لگا تو اسے اپنی دل کی ملکہ ضرور بناؤں گا۔ لوگ اپنے بادشاہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ جلد اپنے بادشاہ کے ساتھ ایک نیک دل حسین ملکہ کو دیکھیں۔ ایک دن بادشاہ شکار کرنے کے لیے گھنے جنگل میں گیا۔ شکار کرتے کرتے وہ بہت دور نکل آیا۔ اچانک اسے دور ایک چمکتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ بادشاہ حیران ہو کر اس روشنی کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک نہایت حسین لڑکی گولڈن لباس میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے لمبے سنہری بال زمین پر پھیلے ہوئے تھے اور اس کے ارد گرد جگنو چمک رہے تھے۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی یہ کون ہے اور جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ اسے آخر کیا ہوا ہے؟ یہ کون ہو سکتی ہے؟ اس نے اسے ہاتھوں میں اٹھایا اور اسے اپنے محل لے آیا۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو وہ خوفزدہ تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی خاموش رہی۔ آپ کون ہو اور میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ آپ گھبرائیں نہیں، آپ محفوظ جگہ پر ہیں۔ پر آپ کون ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، میرا نام ابریش ہے۔ بس اتنا ہی، وہ اپنے بارے میں اور کچھ نہ بتاتی۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اگر تمہارا کوئی نہیں تو تم اس محل میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہو۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور وہ اس محل میں رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ ابریش بہت نرم دل، مہربان اور خوبصورت تھی۔ وہ محل کے ہر شخص کا خیال رکھتی۔ بادشاہ کو بھی ابریش کی معصومیت اور خوبصورتی بھانے لگی۔ اسے ایسے لگا جیسے یہ وہی لڑکی ہے جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ آہستہ آہستہ اسے ابریش سے محبت ہونے لگی۔ آخر ایک دن بادشاہ نے ہمت کر کے ابریش سے کہا، ابریش، کیا تم میری دلہن بنو گی؟ میں چاہتا ہوں تم اس سلطنت کی ملکہ بنو۔ جی حضور، یہ میری خوش نصیبی ہو۔ کیا تم میری ملکہ بنو گی؟ میرے دل کو آج تک کوئی لڑکی نہیں بھائی، لیکن پتہ نہیں، تمہیں دیکھ کر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تم ہی میرے دل کی ملکہ ہو۔ ابریش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جیسے کسی خوف میں مبتلا تھی، مگر پھر اس نے بہت نرمی سے کہا، یہ تو میرے لیے بہت بڑے نصیب کی بات ہے جو آپ میرے جیون ساتھی بنے۔ بادشاہ نہایت خوش ہوا اور جلد ہی پورے نورستان میں شادی کی خوشیاں منائی جانے لگیں۔ محل روشنیوں سے جگمگا اٹھا، ہر طرف جشن تھا اور یوں ابریش سلطنت کی ملکہ بن گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ ابریش اور بادشاہ عمران ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ وہ اپنی نہایت حسین زندگی گزار رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے ایک سال گزر گیا اور پھر ایک سال بعد محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ملکے نے ایک نہایت خوبصورت شہزادی کو جنم دیا۔ شہزادی بے حد حسین تھی، اس کی آنکھیں نیلے ہیرے کی طرح چمکتی تھیں۔ بادشاہ شہزادی کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ خوشی سے اس نے اس کا نام رکھا شہزادی نور۔ مگر اگلی صبح پورے محل میں ہنگامہ مچ گیا۔ ملکہ ابریش اچانک غائب ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے پورا محل چھان مارا، نہ کوئی دروازہ کھلا تھا، نہ کوئی نشان موجود تھا، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ بادشاہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا، کبھی محل کے کمروں میں، کبھی باغ میں، ہر جگہ اسے تلاش کیا۔ بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ پر بھی گیا جہاں سے اسے ابریش ملی تھی، مگر دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ ابریش، تم کہاں چلی گئی ہو؟ پلیز واپس آ جاؤ۔ ابریش کو زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا۔
किसी को कुछ पता न चला। बादशाह टूट गया, मगर फिर थक हार कर वो अपनी बेटी नूर के पास आया। उसने अपनी नन्ही बेटी को बहुत प्यार से देखा। बेटी अपने बाप को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो मासूम क्या जानती थी कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी मेरी है। बेटी, ना जाने तुम्हारी माँ हमें छोड़कर कहाँ चली गई। अब तुम ही मेरे जीने का सहारा हो। बादशाह ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर खुद को संभाल लिया। और फिर अबरीश का कभी कुछ पता न चला। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और शहजादी नूर बड़ी हो गई। वो एक निहायत हुसैन नौजवान लड़की बन गई, मगर उसके साथ अजीब वाकयात होने लगे। एक दिन उसने आहिस्ता से कहा, काश मेरे पास सोने की ततली होती। और अचानक जादुई रोशनी के साथ एक सोने की ततली उसके हाथ पर आ बैठी। शहजादी खौफजदा हो गई। ये कितनी प्यारी तितलियां हैं। काश मेरे पास सोने की एक तितली आ जाए। एक दिन महल के बाग में एक जहरीला सांप उसकी तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही सांप ने शहजादी की आंखों में देखा, वो वहीं मर गया। सब हैरान रह गए। कभी उसके कमरे में खुद ब खुद फूल जाहिर हो जाते, कभी हुआ उसके इर्द गिर्द चमकने लगती। शहजादी डरने लगी। वो हर बार लोगों से कहती, मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ, सच में मुझे कुछ नहीं मालूम। मगर आहिस्ता आहिस्ता पूरे महल में चर्चे होने लगे। नूर के वालिद को जब ये सब पता चला तो उसने अपनी बेटी को तसल्ली दी, मेरी बेटी तुम घबराओ मत। ये तो अच्छी बात है कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर दिल ही दिल में बादशाह थोड़ा परेशान भी हुआ। अगले दिन जब वो वजीर से किसी मामले में बात कर रही थी तो अचानक उसके इर्द गिर्द रोशनी चमकने लगी। वो बहुत घबरा गई। वजीर और खादमों ने जब ये देखा तो वो भी बहुत हैरान हुए। आहिस्ता आहिस्ता सब कहने लगे, शहजादी जादूगरनी है, वो इंसान नहीं, उसके पास खतरनाक ताकतें हैं। मुझे लगता है शहजादी कोई जादूगर नहीं है और उसके साथ जो मामलात होते हैं वो सब एक जादूगरनी के लगते हैं। बिल्कुल, हमने भी ऐसे ही लगता है। नूर खौफ की वजह से हर बात छिपाने लगी। अगर उसके जादू से कुछ हो जाता तो वो फौरन घबरा कर कहती, ये मैंने नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने ये नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। और इसी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे कहने लगे, ये झूठी शहजादी है, ये एक जादूगरनी है, मगर किसी को बताना नहीं चाहती। शायद उसकी माँ भी जादूगरनी थी, इसीलिए गायब हो गई और आज तक वापस नहीं आई। जब ये बात हर तरफ फैल गई तो कुछ दिनों बाद सल्तनत के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग बादशाह और शहजादी के पास आए और कहने लगे, बादशाह हुजूर, अगर आपकी बेटी कोई जादूगरनी है या उसके पास कोई ताकतें हैं तो ये हमें बताएं, वरना ये हमारी सल्तनत के लिए खतरा बन सकती है। बादशाह हुजूर, आपकी बेटी हमारी सल्तनत के लिए खतरा बन सकती है। अगर उसने कोई जादू का अमल सीखा है या उसके पास कोई ताकत है तो ये हमें बताएं। मगर शहजादी खामोश रही और बादशाह भी उसकी सफाई में कुछ न कह सका, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि आखिर शहजादी के साथ ऐसा क्यों होता है। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता शहजादी को झूठी शहजादी कहने लगे। जब लोग नूर को झूठी शहजादी कहते तो ये नाम नूर के दिल में तीर की तरह चपता था। वो रातों को छुप छुप कर रोती, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों होता है। एक रात शहजादी महल के बाहर चांद को देखकर अकेली बैठी रो रो कर अपनी माँ को याद कर रही मेरे थी। साथ ये सब क्यों हो रहा है। माँ, आप कहाँ हो? आप भी तो मेरे पास नहीं हो। कि अचानक धुंध में से एक अजीब औरत नमूदार हुई। उसके हाथ में एक चमकता हुआ लॉक था। वो बोली, शहजादी नूर, रो मत, तुम ये लॉकेट पहन लेना, सब सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर उसने शहजादी को एक चमकता हुआ लॉकेट दिया। ये कहकर वो गायब हो गई। शहजादी बहुत घबरा गई, लेकिन उसने वो लॉकेट उससे लेकर रख दिया, मगर उसे पहना नहीं। चंद दिन बाद महल पर एक खतरनाक साया मंडलाने लगा। रात को अजीब आवाजें आने लगी, सिपाही गायब होने लगे। लोग कहने लगे, ये सब शहजादी की वजह से हो रहा है। बादशाह परेशान था, क्योंकि इस बात का हल उसके पास भी मौजूद न था, मगर वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। जब शहजादी ने ये सब सुना तो उसे उस औरत की बात याद आई, लॉकेट पहनो, सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। शहजादी ने लॉकेट को उठाया, उसे डरते हुए देखा, फिर हिम्मत करके लॉकेट पहन लिया। जैसे ही उसने वो लॉकेट पहना, अचानक वो एक जादुई दुनिया में पहुंच गई। उसके सामने एक जादुई दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार
एक हैरत अंगेज दुनिया थी। चमकते महल, उड़ती परियां, जादुई बागात। वो कोई आम जगह न थी, वो था परियों का परिस्तान। वहां शहजादी ने अपनी माँ अब्रेश को देखा, जो उसी गोल्डन लिबास में खड़ी उसका इस्तकबाल कर रही थी। मगर अब वो आम इंसान नहीं लग रही थी, उसके पैरों से रोशनी निकल रही थी। नूर हैरत से बोली, माँ, ये आप हो? माँ, ये आप हो? क्या आप एक परी हो? हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ नूर, मैं परी हूँ। फिर उसने सारा रात बताया। मैं परिस्तान की शहजादी थी। मैंने एक ऐसा फल तोड़कर खाया था जो ममनू था। इस जुर्म की सजा में मुझे इंसानों की दुनिया में भेज दिया गया, और शर्त ये थी, अगर कोई इंसान मुझसे सच्ची मोहब्बत करे और हमारी औलाद पैदा हो जाए तो मुझे वापस परिस्तान बुला लिया जाएगा। नूर हैरत से सुनती रही। नूर बोली, तो क्या मेरे साथ जो ये सब होता है ये परियों की ताकतें हैं? मगर अम्मी, मुझे ये ताकतें क्यों मिलें? अब्रेश बोली, क्योंकि तुम आधी इंसान और आधी परी हो। तुम ये ताकतें इस्तेमाल करना नहीं जानती मेरी बेटी, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब होता है। वो दोनों बातें कर रही थीं कि इतने में परिस्तान पर हमला हो गया। एक खौफनाक सियाह जादूगर नमूदार हुआ, जिसका नाम था ज़हाक। वो जोर जोर से हंसकर चलाने लगा। आखिर मुझे वो लड़की मिल ही गई। मुझे इसी लड़की की तलाश थी जिसमें मैं इंसान और परियों की ताकतें शामिल हूँ। आज तुम मेरे सामने आ ही गई। वो नूर की ताकतें हासिल करना चाहता था। ज़हाक जोर से मुस्कुराने लगा। नूर खौफजदा हो गई। अब्रेश ने उसका हाथ पकड़ा। मेरी बेटी, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम जादूगर का मुकाबला कर सकती हो। तुम्हारे अंदर वो तमाम ताकतें मौजूद हैं जो उसे रोक सकती हैं। तुम कर सकती हो, बस अपने खौफ को छोड़ दो। सच का दामन थामो और महसूस करो कि तुम्हारे अंदर जादुई ताकतें हैं। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। पहली बार नूर ने खुद से झूठ बोलना छोड़ दिया। वो चीखी, हाँ, मेरे पास ताकतें हैं और मैं उनसे डरना नहीं चाहती। हाँ, मेरे पास जादुई ताकतें हैं और ये तुम्हें खत्म कर देंगी। अचानक उसके इर्द गिर्द रोशनी फैल गई। नूर के हाथों से जादुई रोशनी निकली और उसने ज़हाक की तरफ वो रोशनी फेंकी। ज़हाक की ताकतें खत्म होने लगीं। आखिरकार ज़हाक शिकस्त खा गया और गायब हो गया। परिस्तान बच गया। परियों का मलका नूर के पास आई। नूर, तुमने आज अपनी ताकतों से इस परिस्तान को बचा लिया। तुम जो चाहो मांगो, हम तुम्हें देंगे। शुक्रिया नूर, तुमने आज परिस्तान को बचा लिया। हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। तुम चाहो तो हमेशा के लिए परिस्तान में रह सकती हो। नूर को अपने वालिद याद आए जो आज भी उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। नूर मुस्कुराई और बोली, मेरा घर वहीं है, अपने वालिद के पास। मैं अपने बाबा को एक बार फिर अकेला नहीं करना चाहती। नहीं, मैं अपने बाबा के पास वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बेटी बिल्कुल अपने वालिद जैसी है। अब्रेश की आंखों में आंसू आ गए। तुम बिल्कुल अपने वालिद जैसी हो। साथ ही नूर ने मुल्का से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। आप मेरी माँ को माफ कर दे और मुझे मेरी माँ को अपने साथ घर ले जाने की इजाजत दे दे। लेकिन मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि मेरी माँ को माफ कर दिया जाए और उन्हें मेरे साथ वापस भेज दिया जाए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मलका को नूर की मासूमियत पर बहुत तरस आया और उसने कहा, बेटी, अगर तुम्हारी माँ जाना चाहती है तो वो चली जाए, लेकिन जमीन पर पहुंचते ही वो अपनी आधी जादुई ताकतें खो देगी, जिनमें उसके पर भी शामिल हैं, जो हमेशा के लिए उससे छिन जाएंगे। अगर तुम्हारी माँ ये सब कुछ बर्दाश्त करना चाहती है तो वो जा सकती है। अब्रेश ने अपनी प्यारी बेटी को देखा और बादशाह की वो मोहब्बत और वो दिन याद किए जिनमें उसने हुसैन जिंदगी गुजारी थी। तो वो बोली, मुझे ये कबूल है। मैं वापस उस दुनिया में जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे प्यार करने वाला शौहर और इतनी प्यारी बेटी मिली थी। इधर दूसरी तरफ जब बादशाह नूर के कमरे में आया तो उसने देखा कि नूर कमरे में मौजूद न थी। उसे अब्रेश का गायब होना याद आ गया और वो बैठकर रोने लगा। शायद अब्रेश की तरह मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। लगता है मेरी बेटी भी अपनी माँ की तरह मुझे छोड़कर चली गई। मैं क्या करूँगा? अब प्लीज मेरी बेटी वापस आ जाओ। वो बैठा रो ही रहा था कि अचानक एकदम से रोशनी फूटी और उसके सामने अब्रेश और उसकी बेटी नूर दोनों खड़ी थीं।
बादशाह ने जैसे ही इब्रेश को इतने सालों बाद देखा तो फौरन भागता हुआ उससे लिपट गया और अपनी भीगी हुई आंखों से उससे सवाल करने लगा, तुम आखिर मुझे छोड़कर क्यों गई थी? फिर उसकी बेटी नूर ने तमाम वाकया सुना दिया। बादशाह ने अपनी बेटी और इब्रेश दोनों को गले से लगा लिया और सुबह होते ही उसने अपने महल में ऐलान कर दिया कि इस महल की मलका वापस लौट आई है और अपनी बेटी और मलका की सच्चाई सब लोगों को बता दी। अब सब लोग शहजादी नूर की बहुत इज्जत करने लगे क्योंकि वो सच जान चुके थे कि उसके पास जादुई ताकतें हैं जिनसे वो अपनी और पूरी सल्तनत की हिफाजत कर सकती है। उस दिन के बाद किसी ने उसे झूठी शहजादी नहीं कहा। अब लोग उसे कहते थे जादुई शहजादी नूर। और यूं नूरिस्तान में दोबारा खुशियां लौट आईं और सब हंसी खुशी रहने लगे। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये स्टोरियां बनाते हैं और आप जब चैनल सब्सक्राइब करके नहीं जाते तो हमें बहुत दुख होता है।